So dear students, now we are here on exercise number 3.2, which is based on the polygons properties, the polygons diagonal property, polygons angle sum property. Okay. So the first question of exercise of NCERT is you have to find out the value of x in the figure. So the first figure which you will see, it is related to a triangle. So I am drawing this diagram now. You can see this diagram. This is x, this is 125, and this is again 125. Now if you see this figure in a proper way, you will find out that all the angles which are marked, all are exterior angles. Okay? This angle is also exterior, this angle is also exterior, and this angle is also exterior. And you are knowing that triangle is a polygon. And any polygon, x, y, z, जो भी नाम आप सोचो अपने मन में, all the polygons have exterior angle in the sum of 360 degree. Okay, so that means 125 plus 125 plus x मिलाकर के कितना हो जाएगा बेटा 360 degree. So 125 and 125 will give you here 250. 250 plus x will be giving you just sum 360. Now x will be here 360 degree minus 250, and the answer will be 110. This is the value of x in this question. X value will be 110. This is question number 2. Let us find out that how many sides this figure has. 1, 2, 3, 4 and 5. It means this figure is a pentagon. Okay, this figure is a pentagon. ये सबसे पहला काम है जब आपको पता करना उसका किसी भी क्वेश्चन में. ठीक है. दूसरी चीज बेटा अगर गौर से देखो, I have already discussed this property with you that each interior including its exterior gives you the sum 180 always. मतलब किसी भी figure में which you are talking about from a polygon, उसका एक इंटीरियर उसी के एक्सटीरियर के साथ मिलकर के हमेशा एक 180 देता है. ठीक है. सो हम एक एक करके फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले यू आर नोइंग दिस इज द साइन ऑफ 90. सो बाहर वाला भी 90 हो गया और अंदर वाला भी 90 हो गया. हालांकि हमको अंदर वाले एंगल्स की डिफरेंट जरूरत नहीं है, बट आई एम जस्ट राइटिंग इट आउट फॉर आवर इंफॉर्मेशन. सो दिस इज 90 एंड 90. सेम हियर दिस इज 90. सो बेटा बाहर वाला भी हो गया कितना 90. सेकंड पार्ट. ठीक है. थर्ड वाला देखो यहाँ पर 60 है, ये वाला हो जाएगा आपके पास 120. आई हैव मार्क्ड दिस वन नाउ. नाउ दिस इज 70. सो अंदर वाला हो जाएगा 110. अब अगर आप गौर से देखो बेटा, सो आपको अंदर पेंटागन के 1 2 3 4, नाउ यू आर नोइंग 4 एंगल्स ऑफ अ पेंटागन. ठीक है. नाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग इंटरनल एंगल सम, इंटीरियर एंगल सम्स. ठीक है. सो इंटीरियर एंगल सम कल हम लोगों ने किया भी था. दैट वाज फॉर्मूला n-2 into 180. so it is having 5 sides, so that is 5 minus 2 into 180, which will give you 3 into 180, and answer will be 540. ठीक है. so the total sum is 540. add this 4 angles, subtract from this 540, you will get the value of this angle. और जैसे हमको ये वाला एंगल पता चलेगा, आप उसको 180 से माइनस करोगे, आपको बाहर वाला एंगल मिल जाएगा. दिस इज वन ऑफ द मेथड. ठीक है. बाय यूजिंग द इंटरनल एंगल, और यू कैन कॉल इट इंटीरियर एंगल. बट हम इतनी लंबी प्रोसेस क्यों करें? ठीक है. व्हाई वी डू इट सच अ लॉन्ग प्रोसेस कि पहले हम 540 निकालें फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करें. व्हाई डोंट वी यूज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल? बिकॉज़ इट इज ऑलवेज फिक्स्ड, दैट इज 360. So remember beta, any of the figure which you talk about, if it is a polygon, remember always it will always have the sum 360 degree as the exterior angle. Now let us find out what are the exterior angle here. 90, then another one we have 70, और हमेशा एक लाइन से बढ़ो ताकि भूलो ना कुछ भी, है ना. This is x, 90 आया, 70 आया, x आया, फिर 90, फिर 60. So this is 90 and 60. Now when you add all this, you will get it 360 degree. Why? Because all the angles will give you the sum 360 degree because they are exterior angle. So 90 and 90 will give you here 180.
180 and 60 will give you here 240. 240 and 60 मिलाकर के हो जाएगा 300 and 307 मतलब 10 extra तो 310. So 310 plus x is equals to 360. So the value of x will be 360 minus 310, which will give you x value as 50 degree. I hope it is understood by you all. If yes, please reply. Question number 2 says that you find the measure of each exterior angle of a regular polygon of, if you have 9 sides, and another one is there if you have 15 sides. So 9 sides wala I will tell you, and 15 sides wala you will try along with me. As you all know, beta, I have already discussed with you that always remember, if you are having the number of sides, it means that same number of angles will also be there. ठीक है? Because किसी polygon में अगर 9 sides है तो उसके angle भी 9 ही हुए. ठीक है? Now you are knowing it is asking exterior angle की value. So remember always each exterior angle will be equal to 360 degree divided by n. n मतलब यहाँ पर हो जाएगा 9. Now n क्यों बेटा? Because you are knowing that it is fixed. 360 degree is fixed. Total sum of exterior angle is 360 degree. अब अगर आपके पास 9 एंगल है तो आप उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो. अगर आपके पास 15 साइड्स है तो you are dividing it by 15. Okay, so just depending on how many sides you have. So if you will divide it this, you will get it 40 degree. मतलब इसका हर एक exterior angle 40 डिग्री के मेजरमेंट का होगा. ठीक है? Because the formula for this one is 360 divided by n. So please try this out, this question, and please tell me what is the answer for 15 sides. 15 side which I told you to do. So the same process will apply. The total sum of exterior angle is 360. 15 total sides है, उसको you will divide it, you will get it 15 2s are 30 and 15 4s are 60. 24 degree will be the value of each exterior angle. Now this was our question number 2. Very easy, very normal question. Okay. Now question number 3 is telling here how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree. मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए रब नहीं किया है क्योंकि आप चाहो तो इसको देख सकते हो. 15 साइड्स थी तो 24 डिग्री एंगल आ रहा था. ठीक है, 15 साइड्स थी तो 24 डिग्री एंगल आ रहा है. और क्वेश्चन नंबर 3 में यही पूछ रहा है कि अगर एक्सटीरियर एंगल 24 हो तो कितनी साइड्स होंगी. जस्ट ऑब्वियस बात है 15 साइड्स होगी. ठीक है, बट हम इसको ऐसे डायरेक्ट तो लिखेंगे नहीं. हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? द सेम फॉर्मूला यू विल कन्वर्ट. कैसे फॉर्मूला कन्वर्ट होता है? नंबर ऑफ साइड्स विल बी इक्वल टू, इस फॉर्मूले को हम ट्रांसफर मेथड से चेंज कर सकते हैं. कैसे चेंज कर सकते हैं? ये हो जाएगा नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल. फॉर्मूला विल बिकम चेंज. ठीक है, this is the formula for finding out the number of side if you are knowing the exterior angle. अब इस क्वेश्चन को बेटा मैं थोड़ा सा मोल्ड करती हूँ जैसे मैंने आपको उस क्वेश्चन में मोल्ड किया था. अब आप अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि अगर इस क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल दिया था तो आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, बट इस क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया है, इंटीरियर दिया है. हाउ विल यू डू दैट? यूज योर माइंड एंड टेल मी, देन आई विल टेल यू द आंसर ऑफ इट. सपोज एक्सटीरियर एंगल नहीं आया, हमको इंटीरियर दिया है क्वेश्चन में और हमें नंबर ऑफ साइड्स ही निकालनी है. हाउ विल यू डू? ऑलवेज रिमेंबर ईच इंटीरियर इफ यू ऐड विद एक्सटीरियर इट गिव्स यू 180. ठीक है, सो अगर आपको इंटीरियर दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपको इंटीरियर एंगल की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालना है, तो सबसे पहला काम ये करो, इंटीरियर एंगल जो दिया है उसको 180 में से माइनस कर दो. Let's say I am giving you the example. Suppose you have 50 degree. ठीक है, आप उसको माइनस कर दो, you will get it 130 degree. ठीक है, और उसको आप फिर आपका फॉर्मूला बन जाएगा. जो फॉर्मूला आपके पास था उसको आपको कुछ करना ही नहीं है. You have the same formula. ठीक है, फॉर्मूला will not
change. You will only have one step more. आपको एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा. That you have to find out first exterior angle. Or at any point of time, beta, at any point of time, if you are knowing interior, you can find out exterior. If you are knowing exterior, you can find out interior just by subtracting 180. A very, very simple concept. Subtract it from 180. A very simple concept. Now, please reply. Have you understood? Now, always remember one thing, beta. The formula will be always this only. 360 upon each exterior angle. No matter in the question if you have interior or exterior, in both the cases you can find out number of sides. But remember, it is only true. This formula is only true when you have a regular figure. Remember, if you have a regular figure, because regular figure में हर एक angle equal होता है, हर एक exterior angle equal होता है, इसलिए आप ये formula लगाते हो. But अगर आपके पास जो figure है वो irregular है, तो you cannot use this formula. Please keep in mind. But remember always, question ऐसा आता ही नहीं है. Question हमेशा regular figure का ही आता है. ठीक है? So ये याद रखना कि you will be using this formula at a time. ठीक है? So इंटीरियर एंगल पता हो तो आप तुरंत उसको 180 से सब्ट्रैक्ट करोगे और आपको मिल जाएगा एक्सटीरियर एंगल. और जैसे ही आपको एक्सटीरियर एंगल मिलेगा बेटा, आप तुरंत ही उसको क्वेश्चन में पुट करोगे एंड यू विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ साइड्स. ठीक है? नाउ प्लीज सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. Now let us see what is question number next here. So in question number 4 you have that interior angle is 165. ठीक है? Interior angle is given here 165. तो सबसे पहले बेटा हम क्या निकालेंगे? एक्सटीरियर एंगल. और हम क्यों निकाल रहे हैं एक्सटीरियर एंगल? बिकॉज द फॉर्मूला वांट्स एक्सटीरियर एंगल. सो यू आर नोइंग इट विल गिव यू 165 में जब हम 15 ऐड करेंगे तभी हमको 180 मिलेगा. सो इट मींस 15 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल. ठीक है? अब एक्सटीरियर एंगल हमको मिल गया. नाउ वी वांट नंबर ऑफ साइड्स. So number of sides will be 360 degree upon each exterior. Each exterior is 15. Now you will divide it, you will get it 24. So it means that figure will have 24 number of sides. Yes. So question is telling here in question number 5, is it possible to have a regular polygon with of each exterior angle as 22? बिल्कुल वही क्वेश्चन जो अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया. Yes, it is not possible. 360 degree divided by 22. Yes, and what is coming beta? 16.3. Now number of sides are coming 16.3 when you are dividing it, and you are knowing 16 sides are possible, 17 sides are possible, but 16.3 sides are not possible because sides should come in whole number. ठीक है? You cannot draw any polygon which will have 16.3 sides. So remember, it is not possible. So simply you have to write down not possible. Okay? Now it is asking from you, can it be an interior angle of a regular polygon? Why? Now give the reason. कि एक्सटीरियर एंगल नहीं है, ये इंटीरियर एंगल हो सकता है क्या? जस्ट सोच कर देखो. Interior angle as 22 is not possible. Same exterior angle also 22 is not possible. So this question is also completed. Now let's move on to the last question of this exercise, question number 6. What is the minimum interior angle possible for a regular polygon and why? And what is the maximum exterior angle possible for a regular polygon? That also you have to reply. तो इसके लिए बेटा मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ये बोलूंगी कि सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा होता है, सबसे कम साइज वाला पॉलीगन कौन सा होता है? टेल मी. ट्रायंगल होता है. सो बेटा याद रखो कि आपको जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ट्रायंगल होता है. सबसे पहले याद रखिए कि हमसे जब भी कभी पूछा जाए व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल एंड व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, तो रिमेंबर जितनी कम साइड्स होंगी बेटा, जितनी कम साइड होंगी एक्सटीरियर एंगल उसका उतना ज्यादा होगा. जस्ट इट्स एग्जांपल लाइक अ केक. ठीक है? आपके घर में बर्थडे पार्टी है, आपने एक केक ऑर्डर किया है. ठीक है? और आपके घर में पहले से प्री डिसाइडेड था कि केवल 3 लोग आएंगे. ठीक है? सपोज 3 ही आपके फ्रेंड्स जो है उस दिन आने वाले थे. ठीक है? और आपने उसके हिसाब से केक अरेंज किया और वही केक 3 लोगों में जब आपने बांटा तो आपका वो केक
ज्यादा आया हर एक पर्सन को, ठीक है। सेम लाइक ट्राइंगल, बिकॉज आपको पता है 360 डिग्री इज एक्सटीरियर एंगल विच इज फिक्स्ड। अब आप उसको डिवाइड कर लो चाहे 3 साइड्स के ऊपर या 6 साइड्स के ऊपर। सो केक अगर कम लोगों में बटेगा तो हर पर्सन को ज्यादा मिलेगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू ज्यादा होगी। बट रिमेंबर, अगर वही केक आपके पापा ने आपको सरप्राइज देने के लिए उस दिन और ज्यादा फ्रेंड्स बुला लिए, ठीक है, विदाउट लाइक इट्स जस्ट अ सरप्राइज, उन्होंने आपको बिना बताए कुछ और फ्रेंड्स बुला लिए, तो अब आपके घर में 3 की जगह 10 फ्रेंड्स आए हैं और केक वही है जो आपने प्लान किया था। तो अब इस बार क्या होगा, केक ज्यादा लोगों को बटा, और जब केक ज्यादा लोगों को बटा तो हर एक पर्सन को कम मिला, ठीक है, हर एक पर्सन को कम मिला। सो रिमेंबर ऑलवेज, जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा एंगल होंगे एक्सटीरियर में, उतना ज्यादा वैल्यू एक की कम होती चली जाएगी, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? प्लीज रिप्लाई यस और नो, ठीक है। सो याद रखिए, इंटीरियर एंड ट्राइंगल इज अ कॉन्सेप्ट, ट्राइंगल इज अ कॉन्सेप्ट, यस रिमेंबर, ट्राइंगल इज अ फिगर जो कि सबसे छोटा फिगर है, और उसी में आप मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हो, मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हो। सो रिमेंबर ऑलवेज, अगर आपको पता है एक सबसे स्मॉलेस्ट एग्जांपल ट्राइंगल का, जो कि मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, देन यू विल बी ऑलवेज रिमेंबरिंग दिस कॉन्सेप्ट। रिमेंबर, ट्राइंगल जो कि रेगुलर है उसका नाम है इक्विलेटरल ट्राइंगल, एवरीवन नोज, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा एग्जांपल हुआ जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों की कंडीशन आ जाएगी। कैसे? इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता है ईच इंटीरियर एंगल, व्हाट इज इट, 60, रिमेंबर इट इज ऑलवेज 60, इट इज फिक्स्ड, ठीक है, इट इज ऑलवेज फिक्स्ड, 60 डिग्री होता है, ठीक है। नाउ ईच एक्सटीरियर एंगल, व्हाट विल बी दैट, टेल मी। The same process, 180 minus 60, 130 कहां से आ गया, 120, 120, ठीक है। सो ये यही हो गया आपका आंसर। What is the minimum interior angle which is possible? That is 60. 60 से कम कोई पॉसिबल नहीं है। What is the maximum? Maximum is 120. इससे बड़ा कोई पॉसिबल नहीं, ठीक है। So this is solution number 6. How can you do that? I hope everybody has understood this concept. Yes or no?